Students, today in this video we are going to read about nutrition in plants. This chapter is of class 7th, first chapter. Nutrition in plants. पादप में पोषण, पोषण क्या होता है? Nutrients materials. It is not necessary that all foods we are going to take all consist of nutrients. Nutrition is the process of taking food by an organisms and digestion, absorption and utilization by the body. न्यूट्रिशन वह चीज है, प्रक्रिया है, किसी भी जीव द्वारा भोजन किया जाए, उसका अवशोषण किया जाए और उसे का प्रयोग किया जाए, इसी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब प्लांट्स में पादप होता है, पौधा भी हम कह सकते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज एटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक। अब एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? स्वजोही। एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वह स्वजोही होता है, कि मतलब अपने खुद बना करके खाना। Those plants which makes their food itself by the process of photosynthesis are called the autotrophic mode of nutrition. अब here the point comes photosynthesis. सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेड। फोटो मीन्स लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? बनाना। अब प्रकाश संश्लेषण क्या क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ carbon dioxide, sunlight, air, water, minerals, etc. Here in the making food, chlorophyll is too much essential, because from this chloroplast chlorophyll are found, and chlorophyll forms there are green pigment found, that is also known as the chloroplast. Photosynthesis can be represented as in the molecular formula 6CO2 plus 6H2O, sunlight, chlorophyll, C6H12, 6H12, O6, 6O2.
when carbon dioxide and water are reacted with the sunlight in the presence of chlorophyll, then glucose and oxygen will be obtained in the reaction. Now, this one you have learned that when carbon dioxide and hydrogen are reacted with chlorophyll and in the presence of sunlight, then glucose will be formed and oxygen will be obtained by this reaction. This one is also known as the autotropic mode of nutrition. It comes under the autotropic modes of nutrition. Now it will come second will be the heterotropic mode of nutrition. ये होता है परजोही। परजोही माने अभी आपने जो उसमें पढ़ा स्वजोही। स्वजोही माने जो अपने भोजन बना करके खाता है उसी को स्वजोही कहा जाता है। और परजोही माने जो दूसरे पे आधारित होता है, जो रेडीमेड भोजन करता है उसी को परजोही कहा जाता है। Heterotropic mode of nutrition is known as those nutrition which are depend on the other. Ready-made foods are called the heterotropic mode of nutrition. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वह भोजन नहीं बना पाता, क्योंकि जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा, हरित प्रोटीन नहीं रहेगा, ग्रीन पिगमेंट जब नहीं रहेगा तो वह भोजन बना नहीं सकता है। अब हम परजोही के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम चलते हैं पढ़ने। अब उसमें कैसे कैसे पोषण प्राप्त होता है। 3 types of nutrition are found in the heterotropic mode of nutrition. First one is saprophytic nutrition, second one is parasitic nutrition, and third one is symbiosis. Saprophytic क्या होता है? The mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organisms, organic matters of plants and animals are called saprophytic nutrition. अब इसमें वह माध्यम होता है, भोजन का वह माध्यम होता है जो कोई भी कार्बनिक मरे हुए पौधे या जीवाश्म जो रहते हैं उससे जो यह भोजन अवशोषण करता है, प्राप्त करता है, उसी को जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। यह एक प्रकार का पोषण का वह माध्यम है जो हरित प्रोटीन के बगैर है। पौधे, मरे हुए पौधे या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ, जानवर भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, उससे जो पोषण प्राप्त करता है उसे हम जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकंड आ गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच सम प्लांट्स लिव इन or on the body of the other organisms, living organisms, and get their ready-made food from them is called parasitic nutrition. अब वे माध्यम जो parasitic mode of nutrition है, एक प्रकार का पोषण प्राप्त करने का माध्यम है जिसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो लेता है, उसी को parasitic nutrition कहा जाता है। अब सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बियोसिस में समायोजन होता है। क्या होता है? समायोजन होता है सिम्बियोसिस में। इसमें अलगे और फंगाई दोनों काम करते हैं, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। अलगे फंगाई दोनों मिलकर के एक साथ, दोनों के पूरक होकर के कार्य करते हैं, उसी को सिम्बियोसिस कहा जाता है। सिम्बियोसिस का सबसे बढ़िया उदाहरण है लीचेन। लीचेन्स आर that types of plants where on which play the both role of algae and fungi. Lichens. Algae contains chlorophyll.
एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है, बट एल्गे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। एल्गे जो है क्लोरोफिल होने के नाते से वह अपना भोजन स्वतः बनाता है। द फंगाई शेयर द फूड मेड बाय द एल्गे। अब एल्गे अपना क्लोरोफिल है, यह भोजन बना रहा है, फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, भोजन नहीं बना पा रहा है, लेकिन इसके पास जो खाना है एक फंगाई को दे रहा है भोजन करने के लिए कि तुम भी जियो मैं भी जीऊं। अब ये जो है क्या करता है फंगाई, एल्गे नीचे है फंगाई ऊपर है, एल्गे के पास क्लोरोफिल होने के नाते से यह भोजन बनाया और ट्रांसफर कर दिया अपने मित्र के पास, फंगाई के पास हो गया। और ये क्या करता है, इसका सुरक्षा प्रदान करता है, इसको सुरक्षित रखता है। इसी प्रक्रिया को, इसी दोनों को एक पूरक होकर के कार्य करने के माध्यम को हम सिम्बियोसिस कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं, समायोजन जिसे कहा जाता है। The fungi in return provide protection, water and minerals to algae. Minerals भी, वाटर भी, सारी चीजें उसी के पास स्टोर करके प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको बचा करके रखता है ताकि यह ऊपर रहता है और यह नीचे रहता है, इसको भोजन देता है और इसका सुरक्षा सारा यह करता है, कवच के रूप में कार्य करता है फंगाई एल्गे के लिए, और एल्गे जो है भोजन के रूप में काम करता है। अब सिम्बियोसिस हमने पढ़ा। अब सिम्बियोसिस का मेन डिफिनेशन क्या होता है? अभी तो हमने एग्जांपल बताया आपको समझाने के लिए, नीचे उसमें है एल्गे फंगाई दोनों का काम कर रहा है। अब उसका क्या होता है, समायोजन होता क्या है? द नेचुरल एसोसिएशन। अब यहां नेचुरल एसोसिएशन प्राकृतिक समायोजन, संधि। द नेचुरल एसोसिएशन इन व्हिच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर नेचुरल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। नेचुरल एसोसिएशन हो गया, समायोजन हो गया, दोनों लोग, दोनों सूक्ष्म एक ही में दो सूक्ष्म जीव मिलकर के एक ही तरह का कार्य करके जो जीव एक दूसरे के फायदा के लिए कार्य करते हैं उसी को समायोजन कहा जाता है। इसके बाद होता है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इतना तो न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, हेटरोट्रॉपिक पढ़ा, हेटरोट्रॉपिक पढ़ा। जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है उसे हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, और जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है उसे हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। अब स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? स्पेशल विषय होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने पोषण तत्व प्राप्त करने की विधि। A few plants feed on insects for fulfilling their nitrogen requirements. कुछ पौधे होते हैं जो कीड़े पे, मकोड़े पे आधारित होते हैं अपना नाइट्रोजन लेने के लिए। Such insects eating plants are called insectivorous plants. कुछ जो पौधे होते हैं उसे insectivorous plants कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या होता है? अट्रिकुलेरिया, अट्रिकुलेरिया, ड्रोएरिया। अल्ट्रिकुलेरिया को हम कहते हैं पिक्चर प्लांट और ड्रोसेरा को कहते हैं विनस फ्लाइट्रिक। इन दिस वे ये चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैव बीन कमेमोरेटेड फॉर एक्सरसाइज। यू कैन कंसल्ट द कार्डोबा बुक एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कंसल्ट टू योर स्कूल मोबाइल नंबर। थैंक यू।